ऐ जज्बाए दिल कर मैं चाहूं हर चीज मुकाबिल आ जाए, मंजिल के लिए दो गाम चलूं और सामने मंजिल आ जाए। इस जज्बाए दिल के बारे में एक मशवरा तुमसे लेता हूं। उस वक्त मुझे क्या लाजिम है जब तुझ पे मेरा दिल आ जाए। ऐ जज्बाए दिल कर मैं चाहूं हर चीज मुकाबिल आ जाए। Our world has seen many gurus, but few Siddha gurus and fewer Mahagurus. Mentoring disciples is relatively easier than mentoring mentors. Gurudev was a Mahaguru, a guru of gurus. Let's peek into his supernature. There are many facets of Gurudev. Although he had a short life, his stories run into volumes. It's taken us more than a decade to research his biography. So it's actually impossible to share even a fraction of his life and stories in one conversation. But in time to come, you can learn more about him through the website Gurudev Online and through his audio and video biographies. Since today is Ganesh Chaut, let me start this session by talking of Gurudev's connection with the power of Ganpati, which incidentally predates his emergence as a Mahaguru. As a child, Gurudev shared a unique relation with the statue of Ganpati at his home. It seemed like Ganpati was his regular go to guy for anything he desired. So Gurudev had probably figured out that laddus could probably propel this elephant god into action. Once, after a fight with one of his sisters, the young Gurudev requested Ganpati to fail his sister in her exams. What a request! When the results were declared, she flunked. He got spanked, but Ganpati ji definitely got the laddus. So we can't be too sure, but maybe it was Ganpati who helped him materialize pinnies from a locked cupboard for his sisters. What a way to impress his sisters. Well, the sisters, being true blue Punjabis, loved all things sweet. While the sisters were in awe of him, his mother definitely grew tired running after him. As an 8-year-old, he bunked school to spend time with sadhus and fakirs. One of them told his mother that when her son turned 35, he would either become a sadhu or someone like Shiv. So, as predicted, by the age of 35, Gurudev was a walking, talking Shivalaya, meaning he had acquired the powers of the Shiv Parivar, the Shiv family. And these powers were represented as symbols on his hands and other parts of the body. Let's talk about these power symbols. His left hand had the symbols of Ganpati, Jyot, Trishul, and a Trishul passing through an Om, which was in the center of his hand. And on his right hand, one could see the Shivling, the Jileri, the Om, and the Nandi. Now, let's hear what one of Gurudev's senior and most humble disciples, F.C. Sharma ji, has to say about Gurudev's power symbols. गुरु जी के पहले ओम था और उनका ओम जो है वो इस तरह से होता था, इस तरह से, मतलब ऐसे ही नहीं था, यूं था। यहाँ पर उनका त्रिशूल था और त्रिशूल भी छोटे से ओम से था और वो लाल रंग का था। फिर उनके पास वो नंदी के 2 सींग दिखाई देते थे और ये सारी सिंबल थी। लेकिन कुछ टाइम में ऐसा हुआ था कि गुरुजी की ये सिंबल सारी कभी उन्होंने बिल्कुल नहीं रही और एक सर्कल बन गया यहाँ पर, जिसमें से लाइट एमिट हो रही होती थी। वो हमारे कुछ गुरु भाइयों ने देखा हुआ है।
Talking of Ganesh Chaut, we fast on Ganesh Chaut to awaken the Ganesh or the Ganpati Tattva within us. Any person who has the Ganpati symbol on his hand is certainly qualified to go Par Brahm, meaning to go beyond the illusion of Maya. Similarly, the symbol of Om on your hand qualifies you as divinity, while the Trishul implies that the creative powers of Prakriti or Shakti are vested in you. This means that you have the ability to handle negative energies and that you can heal others by absorbing the negativity either in part or in full. We'll be talking about the symbols in greater detail in the biography, but let me also give you a sneak peek into an audio clip in which Mataji, Gurudev's wife, talks about the Sudarshan Chakra that would appear on her husband's arm. इनके हाथों में वो जब ये जन्माष्टमी आती थी कृष्ण का वो चक्कर दर्शन चक्कर पूरा गोल आता था लाइट में हाथ में आता था मतलब अंदर के बाहर हाथ में नजर आता था बाहर मतलब हाथ कितना हथेली में कितना बड़ा होता होगा जी आधा इंच 1 इंच 2 इंच हथेली कितनी बड़ी होती है बहुत 2.5 इंच पूरी हथेली Gurudev shared all his power symbols with his disciples. But not only disciples, even those who came to him sometimes for the first time became beneficiaries of his grace. There was no specific method or fixed formula. On her first visit to the Stan, an army officer's wife expressed curiosity on seeing the Om on Gurudev's hand. So she asked him, "How does one get it?" He asked her immediately to look at her hand. She was shocked because she saw an Om on her palm. He then told her, "Put, isse logon ki seva karna," meaning use it to help others. Gupta ji, who runs a Stan in Parvanu, got the Om on his hand during the second meeting with Gurudev. And during that meeting, not only him but his entire family received the Om. Santosh ji, who runs a Stan in Nidom, got the symbols within 2 months of his meeting with Gurudev. Let's hear what he had to say about the symbols and how he got them. संतोष जी, आपको गुरुदेव के कितने दफा मिलने के बाद या कितने अरसे के बाद आपके हाथ में आपको ये ओम के दर्शन कराए उन्होंने? ऐसा है कि मई जून 76 में गुरु जी का कैंप था कथोग में ज्वेलरी के पास। वहीं पर गुरु जी की कृपा हमारे पर हुई, गुरु जी की शरण हमें नसीब हुई और गुरु जी ने सेवा में लगाया। तो गुरु जी ने तभी बताया था कि शिवपुरी में गुड़गांव में मेरा स्थान जो है मेन स्थान वहां पर है। तो ठीक 2 महीने बाद हमें छुट्टी होती है, जुलाई अगस्त की छुट्टियां होती हैं स्कूलों में। तो मैं जिज्ञासावश वहां पर गया और जब गया फिर वहां पर गुरु जी के दर्शन तो हो नहीं पाए, माता जी थे, बच्चे थे वहां पर। और मैं श्रद्धावश जैसे भी उस स्थान पे गया, सामने माथा टेका, धूप मैंने किया और धूप की मैंने बंदरा ज्योति की बंदरा मैंने की। और बंदरा करते हुए जब मैंने अपने हाथों की तरफ देखा, हालांकि किसी ख्वाहिश की वजह से नहीं, हाथों की तरफ देखा तो मैंने दाएं हाथ पे जैसे गुरु महाराज के हाथ में ओम था, ओम के दर्शन किए और बाएं हाथ में त्रिशूल का मैंने एहसास किया। And not only did Gurudev share and distribute his power symbols, but he also gave away the benefit, or he shared the benefit of mantra siddhi. Talking of sharing, let me share with you the story of one of Gurudev's disciples who was gifted the siddhi of the Mahamrityunjay mantra. So basically it was Gurudev's instructions that I should come to Gurgaon by air every month to attend Bada Gurwar and do seva there. And so we used to have charts of people to do this and people to do this from different timings, etc. Sometimes this duty, sometimes that duty. But the problem was that whenever I went there, the person already doing that duty would say to me that आप तो गुरुदेव के साथ इतना टाइम बिताते हैं, आपको तो इतना टाइम उनके साथ मिलता है, हमें थोड़ी देर और सेवा करने दो. So I used to put on a fake smile because I certainly did not subscribe to that viewpoint. But what could I do? I just I would just smile and walk away and again come back for my second duty, which again would not happen. And this happened month after month after month. 3 to 4 months passed.
And I was so upset that I come all the way to do seva because he has asked me to do that, and nobody allows me to. Not because they have anything against me. One day Gurudev called me into the room and had this very quirky smile on his face, and he said, "Kis tarah chal rahi hai meri putri seva?" And I almost sort of collapsed, I just looked down and I started having a half smile on my face, and I said, "Karte hi, koi karne hi nahi deta ji, main kya karu?" So then he said, "Tu fikr na kar, tu sirf yahan aake ghumte raha kar. Main tere behalf pe seva kar raha hu." And then he took a long and he said, "Ye nikal ja." I just swallowed it. I mean, it's a nice thing to swallow long, etc. And then after I swallowed it, I was about to leave. I wanted to take his leave because it was a Bada Gurua, and I knew he was busy. So he said, "Ja, tera Mahamatan Siddh hua." That was wonderful, I felt so nice. But then I just realized when I walked out that I did not even know the words of the Mahamatan. So later on, I called him up from my own hometown, and I said, "Jivo Mahamatan." Then of course he used his, his Punjabi vocabulary on me and said, almost as if it was my fault that I did not know it. Gurudev usually worked with 8 mantras. Many of these he had personally tweaked, and some of them were absolutely secret. Actually, it was Gurudev's elusive mentor, Bude Baba, who gave him the missing words that converted his Gayatri mantra into the Mahagayatri. Gurudev worked as a soil surveyor, and his job took him to remote locations in India. One morning, while camped in Madhya Pradesh, he wandered off to a nearby forest while chanting the Gayatri mantra. He came across a dilapidated temple and saw an old bearded man dressed in white seated under a tree. The old man looked at Gurudev and asked him for some tobacco because he noticed that Gurudev was also chewing on it. In return, the old man spoke 8 words and told Gurudev to add these 8 words at the end of the mantra he was reciting. He said that the addition of these words would actually change Gurudev's spiritual trajectory. He also told him that is when Gurudev woke up the next morning, he would find a bracelet on his bed. Sure enough, Gurudev did find a bracelet inscribed with Sanskrit characters under his pillow when he woke up the next morning. So he immediately returned to the temple in search of the old saint, but could not find him. That night, the old man, or Bude Baba, as he later came to be addressed by Gurudev, appeared in Gurudev's vision and told him that all that he was looking for was already within him. He also told Gurudev to start Niswart or selfless seva. So Gurudev told him that he had no clue of how to do this seva. Bude Baba then assured him that whoever he touched would get healed, and he promised him that he would continue to guide Gurudev. And after that night, mantra started coming to Gurudev automatically. And gradually, with the advent of seva and the coming of disciples from previous lifetimes, such as Malhotra ji, Bade Jain Sahib, F.C. Sharma ji, and some others, the movement began to grow. Many other disciples also showed up on some pretext or the other, and their training began. This is how the Guru became the Guru of Gurus. Gurudev was a healer extraordinaire, and he could heal many diseases. He could rid people of black magic, curses of powerful spiritualists, and possession by spirits. Stories of his healing powers are in millions and still ongoing, even 3 decades after he moved on. It's possible that we may run out of paper actually trying to print those stories. Santosh ji, whom we just heard from, has this to say about the healing at Gurudev's camp in Kathok. तो कथोक में काफी जनता वहां पर अपने बड़े इलाज के लिए आ रही थी। उधर काफी ज्यादा लोग हुआ करते थे। तो एक मैंने देखा इंसान अपने सामने एक बुजुर्ग थे, वो 2 लाठियां लेके यूं करके चले हुए हैं, यूं करके उनका यहाँ से पूरा झुका हुआ है, यूं करके चल रहे हैं वो। तो गुरु ने उनको बुलाया कि भाई बाबा, अगर आपकी हम कमर सीधी कर दे तो बाबा जी क्या बोलते हैं, अब
ये तो शमशान पे जाके सीधी हो गई, मैं बुजुर्ग हो गया, अब ये क्या सीधी मेरी होनी है। तो गुरु जी ने क्या किया, बाबा जी को अंदर बुला लिया और गुरु जी ने एक जल का गिलास लेके 2 छींटे लगाए, उनको जल पिलाया और ऐसे जैसे ऐसे थे बुजुर्ग वो, एक हाथ गुरु जी ने यहाँ पर रखा, एक हाथ यहाँ पर रखा इधर, और करते 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 बुजुर्ग को सीधे कर दिए एकदम। अब उनको बोल रहे हैं कि आप लाठी छोड़ दो, बुजुर्ग घबरा रहे हैं कि लाठी छोड़ूंगा तो मैं गिर जाऊंगा मैं। गुरु जी ने लाठी छुड़वाई और उनको थोड़ा चलाया। वो 2 जो कमरा था वो 2 दरवाजे थे उसके, एक दरवाजे से निकाल के 2 चक्कर उनके लगवाए दरवाजे के अंदर। और बाद में गुरु जी ने बोला कि बाबा पे ऐसे करना है, ये लाठियाँ जो है ना अब आपने कंधे पर उठा के घर को लेके जानी है। तो जब बाबा जी यूं चल रहे थे तो लाठियाँ यूं कंधे पे लेके बाबा जा रहे हैं और दुनिया हैरान हो रही है, ये भाई मर के कोई भूत प्रेत तो नहीं बन के आ गया, ये क्या हो गया, ये ऐसा हुआ। उधर मैंने देखा अपनी आंखों से। Although Gurudev had a few prescriptive recipes like elaichis, long, kali mirchi, he could also get away by prescribing ice creams and snowballs as cure for sore throat. The fundamental thing to remember was that no matter what the carrier of his energy was, the cure worked only because of the power of his intent. And even decades after he left his body, he continues to heal people in the dream and vision states. I'm a first-hand example of such a healing, and I'm going to share with you my story. About 15 years ago, I met with an accident when the four-wheeler I was traveling in went over a road divider. This led to microfractures on my body, and it completely hindered my mobility. Before I knew it, muscular atrophy had set in, and I could barely lift my foot off the ground. Gradually, I became an invalid, laid up in bed almost through the day, and I was totally in the throes of negativity. I even shudder when I think of that time, even while talking to you right now. I lived in that condition for a year and a half before I decided that I needed to stop feeling sorry for myself. And that night, I woke up to see a very tall form, almost like a human form, actually a human form, made purely of orangish golden light. And this form was moving his hands over my leg. The form was so tall that it almost touched the ceiling of my room. I shrieked when I saw it. I shrieked. The form stopped what it was doing, looked at me for a brief nanosecond, and then disappeared into the wall behind my bed. Now, on that wall behind my bed is a small mandir where I have placed a photograph of my Guru. So, in that instant, when that form was disappearing, I realized that that form was probably my Guru. And when I looked back at my legs, I felt I could lift them. They were actually lifting. I was spooked and I dismissed this as a dream and calmed myself to sleep. But when I woke up the next morning, sure enough, my legs were moving and my body felt very light, lighter than it had in a very long time. I learned something and I wanted to share that with you today. I learned that a Siddha Guru's grace is not because of who you are, but it is in spite of who you are. And that is why we must consider ourselves most fortunate to find a Siddha Guru who can not only heal us, but can also spiritually transform us. Now let's talk about Gurudev's ability to communicate with spirits and grant them relief, and on occasions, even birth in human form. Let's hear from Kapil Rudraji, fondly called Nikkuji. He's Gurudev's nephew, and he has a sense of humor that can keep you in splits all the time. मैं गुरुदेव के पास बैठा था, शायद वो दोपहर को जल्दी आ गए। अपना पाठ से उठने के बाद वो बैठे हुए थे, तो इतनी देर में भी चाय बन के आने में टाइम था। तो मैं उनसे बैठ के बातें कर रहा था, तो इतनी देर में उन्होंने देखा, बाहर विंडो की तरफ से देखा एक आदमी निकल के गया। तो गुरुजी मुझे कहते हैं कि जा इसको बुला के ला, आज तुझे एक चीज़ दिखाता हूँ।
मैंने कहा पता नहीं क्या बात करने लगे। मैं उठ के गया, मैंने उसको बुलाया, बुला के वो तो बाहर से ही बेचारा दरवाजे पे माथा टेक के जा रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने उसको बोला गुरुजी बुला रहे हैं तो उसकी तो लॉटरी लग गई। वो तो फटाफट अंदर आ गया। अंदर आके उसने गुरुजी को माथा टेका। माथा टेकने के बाद गुरुजी उसको कहते अच्छा बुला भाई। अब उस आदमी ने क्या किया, उसने अपनी दोनों रिंग्स उतारी, अपना घड़ी की चेन खोल के उसने गुरुदेव के बेड पे रखी, हाथों को उसने यूं झटका दिया, गर्दन को यूं घुमाया और वो चीज उसके ऊपर। गुरुजी कहते हाँ भाई क्या नाम है तेरा? वो कहता जी हरिराम चूड़ा। अब मैं बड़ा हैरान कि इसका तो ये नाम भी नहीं है, लेकिन क्योंकि वो उसके अंदर की आत्मा उससे वो गुरुजी से बातें कर रही। गुरुजी कहते तू इसको कहाँ मिला? वो कहता जी मैं इसको निगम बोध घाट में मिला, इसको मैंने निगम बोध घाट पे पकड़ा। वो कहते तूने इसको निगम बोध घाट से कैसे पकड़ा? कहते जी ये वहां पे आया था तो शाम के टाइम इसने वहां किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर इसने यूरिन पास किया, तो मैंने इसको वहां से पकड़ा। शायद मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ, गुरुजी इस बात पे मना भी करते थे कि शाम के टाइम पेड़ के नीचे यू आर नॉट सपोज टू डू यूरिनेट, यू आर नॉट सपोज टू यूरिनेट। अब वो कहते फिर अब इसको छोड़ दे तू। कहता जी छोड़ देता हूँ। अब वो गुरुजी की तरफ देखने लग गया कि शायद गुरुदेव कुछ बोलेंगे। कहते क्या? कहता जी मैं छोड़ देता हूँ लेकिन मेरी एक शर्त है। कहते क्या शर्त है? कहता जी आप मेरा जन्म करवा दो, मैं छोड़ देता हूँ इसको। गुरुजी थोड़ा सा मुस्कुराए, कहते अच्छा देखते हैं। इतना बोला और वो विदिन अ सेकेंड ही वाज नॉर्मल। उसने उठ के अपनी वो रिंग्स पहनी, घड़ी बांधी, गुरुजी को मथा टेका एंड वेंट ऑफ। After that very fascinating story, next up is a reptilian story shared by Bakshiji, who runs a stan at Shimla. And you'll understand what I mean by reptilian when you hear this. तो हम एक दिन रेणुका हमको भेजा, हम रेणुका में घूम घाम के आए दोपहर को। तो खाना खा रहे थे हम, नागपाल इनके साथ हुआ करते थे। तो सांप निकला एक, हम खाना खा रहे थे, सर्दी का मौसम में धूप में थे, तो सांप निकला। मैंने उसको उठा, मेरी मिसेज ने कहा कि गुरुजी आपके ये गहने पड़े हुए हैं, ये आप शिव जी रूप हैं तो कि संभालो। तो उन्होंने देखा, उन्होंने कहा चलो जो भी है कि बख्शी यार इसको हटा दे यहाँ से। मैंने उसको हटाया, थोड़ी देर के बाद फिर आ गया, फिर हटाया, फिर तीसरी बार मैंने उसको नीचे गिराया तो वो खड़ा हो गया, कोबरा था वो। तो गुरुजी ने कहा कि बख्शी तेरे आगे ये खड़ा हो गया है, अब इसको मार दे। ठीक है जी। वो खेत था, मैंने ऊपर से नीचे उतरा, मैंने उसको मार दिया। अब मार तो दिया, हमारा काम मारना तो है नहीं, अब मारा है तो उसकी मुक्ति चाहिए थी। मैंने कहा गुरुजी इसको आप कुछ करते हैं कि चल बख्शी यार इसको दवा देते हैं। मैंने उठाया वो, गुरुजी मेरे साथ गए। वहाँ पर एक कॉर्नर में केले का पेड़ था, उसमें मैंने खुदाई की। मैंने कहा गुरुजी अब कपड़ा तो हमारे पास है नहीं। गुरुजी ने अपना रुमाल निकाला, जेब से डाला, किचन से मैं नमक लेके आया, हमने दबा दिया उसको। अब मैं आपको एक बात बतलाता हूँ, ये तो हो गया। उसी दिन सवेरे एक जोड़ा आया, मियाँ बीबी के, जो हम नान से आए हैं, तो आवाज़ें लगा रहे थे गुरुजी गुरुजी गुरुजी। तो ऐसा मैं और मेरी मिसेज, तो हमने बाहर आए, हमने कहा क्या बात है कि गुरुजी से मिलना है। तो गुरुजी तो पाठ में है कि नहीं, गुरुजी से मिलना है हमको, हम बड़ी आशा से आए हैं। तो हमारी आवाज़ सुन के गुरुजी अपने आप बाहर आ गए कि बेटे क्या बात है, कि जी हम ऐसे ऐसे आए हैं। तो बोलो कि क्या प्रॉब्लम है, कि हमारी बच्चे की प्रॉब्लम है। अब गुरुजी ने सोचा, अब गुरुजी की बात गुरुजी जाने, और हम भी नए नए थे। तो गुरुजी ने कहा कि अच्छा बेटे देखते हैं, आपने ऐसे करना कि शिवरात्रि पे आपने आना है गुड़गांव। वो आया शिवरात्रि को गुड़गांव कि हाँ बेटे हो जाएगा, कुछ हो जाएगा। जब अगली शिवरात्रि पे आया,
वो आया तो मेरे को गुरुजी ने बुलाया कि बख्शी को बुलाओ। मैं गया अंदर तो गुरुजी ने पूछा, बेटे तू इनको पहचानता है? मैंने कहा जी देखा है, पहचान तो रहा हूँ कि इनकी गोदी में बच्चा है, देख। मैंने बच्चा उठाया, मैंने कहा क्या बात है, क्या बात है कि देख इसको ठीक से। तो मैंने बच्चा गोदी में लिया, मैंने बच्चे को उल्टा किया और उसका जो कपड़ा था उसको हटाया, तो वो जो एग्जैक्टली मैंने सांप मारा था बिल्कुल उसकी आकृति बनी हुई, छोटे छोटे बाल जूं करके नीचे कि पहचान गया। मैंने कहा जी वही है ये। सांप की भी मुक्ति हो गई, उनको बच्चा मिल गया, तो ये चमत्कारी तो है, एक बहुत बड़ी बात है। Gurudev had foreknowledge of birth and death, and of our past lives and future births. When Das Sahib, a devotee from Chandigarh, once asked him how he remembered the minutest details of the people whom he met, even though sometimes he probably met them only for a few seconds on Bada Gurupar. This is what the Mahaguru said. He said, when a person meets me, his past, his present, and his future flashed like a movie on the screen of my mind. Gurudev also told his disciples that his relationship with them went beyond their present incarnation. Ravi Trehanji, another of Gurudev's beloved disciples and one of his prime shishyas, who also runs a sthan at Kirtinagar, had this very interesting tale of how Gurudev not only showed him one past life, but two of his previous lifetimes. Let's hear Ravi ji sharing his story with us. ये बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। मैंने कहा जैसे ही मैं गुरुजी के पास पहली बार गया, कमरे में दाखिल हुआ और गुरुजी सबको छोड़ के मेरे पास आ गए। जब उन्होंने कहा कि फिर पुत तू आ गया ना, हुन तेरा वक्त आ गया सी, उसी वक्त एक शख्स जिसको मैं पहले पहचानता नहीं था, उनको जानता भी नहीं था, और गुरुजी की बाजू पकड़ के उनको खींच के दूसरे कमरे में ले गए। मैं थोड़ा परेशान सा हुआ कि गुरुजी मुझसे बात करने आए हैं, ये कौन शख्स है जो उनको बाजू पकड़ के दूसरे कमरे में ले गया है। मुझे बाद में पता चला वो मल्होत्रा गुरुजी थे, मल्होत्रा पापा जी थे, और वो अक्सर कहा करते थे गुरुजी से कि मैं जब भी पाठ पे बैठता हूँ, एक शख्स, उसका ऐसा स्ट्रक्चर है, उसके ऐसे फीचर्स हैं, उसका ऐसा कॉम्प्लेक्शन है, उसका ऐसा स्टेचर है, वो मेरे सामने आके खड़ा हो जाता है। और गुरुजी अक्सर कहा करते थे उनको कि बेटा ये मेरा बच्चा है, ये मेरा ही पुत्र है और इसका वक्त आ गया है, अब बहुत जल्दी आने वाला है। तो ये बात मुझे बहुत बाद में पता चली कि मल्होत्रा पापा जी गुरुजी को खींच के ले गए दूसरे कमरे में, ये कहने के लिए यही तो वो शख्स है जो हर वक्त आके मेरे सामने खड़ा हो जाता है। और इसी दौरान समय बीतता गया, मुझे इनिशिएशन हो गई मेरी, मंत्र के बाद मंत्र मुझे मिलने लग गए। और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि मेरे कुछ मंत्र गुरुजी ने बहुत जल्दी जल्दी चेंज कर दिए, ये कह के कि बेटा तूने ये मंत्र पिछले जन्म में बहुत किए हैं और तुम्हें इस जन्म में सिर्फ याद दिलाने थे। तो मैंने एक दिन बड़े इत्मीनान से पूछा, गुरुजी गुरु और शिष्य का रिश्ता तो मैंने ग्रंथों में भी पढ़ा है, कई बायोग्राफीज में भी पढ़ा है कि कई जन्मों का होता है, तो मेरा और आपका रिश्ता ज़ाहिर है इस जन्म का तो हो नहीं सकता। कोई ऐसा नज़ारा दिखाएं, कोई ऐसा दृश्य दिखाएं कि हम लोग पिछले जन्म में कहाँ थे और कैसे एक दूसरे के पास आए। तो उन्हें बड़े मुस्कुरा के कहा कि बेटा अगर मैंने तुझे अपने मुंह से बता दिया ना, तुझे वो मज़ा नहीं आएगा। आज रात को महागुरु मंत्र करता करता सो जाना, फिर रात को नज़ारा देखना। तो मैं क्या देखता हूँ, करीब 3:15 बजे या 3-3:15 बजे मैं एक 150 बरस पहले की सिचुएशन में चला गया हूँ। एक बहुत बड़ी हवेली है शाहजहाँपुर में, वो हमारी हवेली थी, उसमें 22-23 कमरे थे। मैंने उस जगह पे जाके अपना कमरा जहाँ मैं रहता था आइडेंटिफाई कर लिया। जहाँ मल्होत्रा पापा जी जो कि मेरे सके बड़े भाई थे,
उनका कमरा मैंने आइडेंटिफाई कर लिया। वो 2 कमरे जिसमें गुरुजी आके अक्सर ठहरा करते थे, मैंने वो 2 कमरे भी आइडेंटिफाई कर लिए। और मैंने जल्दी से उठ के, कुछ 3:15-4 बजे का वक्त होगा बहुत, मैंने उठ के जल्दी से एक स्केच बना लिया उस हवेली का। अगले दिन मैं जितनी जल्दी हो सका मैं गुरुजी के पास गया, उनसे ये कहने के लिए कि रात को मैंने ये देखा है, लेकिन इससे पहले कि वो स्केच जेब से निकाल के इनको दिखा पाता और उनको मैंने प्रणाम ही किया था, तो बोले, फिर पुत देख लिया ना, साड़ा की रिश्ता है। तो इस तरह से मुझे उन्होंने और पिछले जन्म के भी 1-2 दृश्य दिखाए, जिससे ये बड़ी मुझे क्लियर इंडिकेशन मिली कि मेरा रिश्ता गुरुजी के साथ इस जन्म का नहीं है, बल्कि पिछले कई जन्मों का है। अगर मैं आपके साथ एक बात और शेयर करूं कि मैंने एक बार गुरुजी को और गुरु नानक देव जी को दोनों इकट्ठे बैठे हुए आपस में वार्तालाप करते हुए देखा। और थोड़ी दूर के बाद मल्होत्रा पापा जी भी वहाँ बैठे हुए थे। मैंने अगले दिन जब जिक्र किया मल्होत्रा पापा जी से कि मैंने ऐसा दृश्य देखा, तो बोले, तुमने कुछ सुना नहीं? मैंने कहा, नहीं, मैं इतनी दूरी पे था कि मैं उनकी आवाज़ तो नहीं सुन पा रहा था, लेकिन आपस में वो बातचीत कर रहे थे, वो मैं देख रहा था। मुस्कुराए और कहने लगे, तू बहुत खुशकिस्मत है कि तूने इतना पुराना रिश्ते का दृश्य भी देख लिया। और मैंने कहा, जब मैं वहाँ खड़ा था, देख रहा था, मैं साक्षी था, इसका मतलब मैं भी वहाँ मौजूद था। तो मेरा रिश्ता गुरुजी के साथ और आपके साथ कुछ 500-550 साल पुराना है। वो फिर मुस्कुरा के चुप हो गए, कुछ नहीं कहा, सिर हिला दिया। हाँ, तो दैट्स एन इंडिकेशन कि मेरा गुरुजी के साथ कितना पुराना रिश्ता है। So besides knowing the past and the future of our lives, Gurudev was mostly in a state of conscious awareness. Bittuji's example, or the anecdote shared by Bittuji, shines a torch on the Mahaguru's super awareness. So, बिट्टू जी, आप मुझे ये बताइए, क्या कभी आपको ये लगा कि गुरुदेव हमेशा ये जानते थे क्या हो रहा है आसपास लोगों के साथ जो उनके पास आते थे? बिल्कुल, उनको सबका मालूम होता था, तभी वो सबको ये बोलते भी थे। शायद मैंने नहीं, बहुत सारे लोगों ने सुना था कि बेटा, मुझे बोलने की जगह आप स्थान पे अरदास कर दो, वो मेरे तक पहुंच जाएगी। एक इंसिडेंट हुआ था, ये दिस इज 1989-88 की बात है। मेरे को दोपहर को कोई 1:30 बजे के करीब गुरुजी ने बोला कि बेटा देख, कोई गाड़ी खड़ी है बाहर। मैंने ठीक है, मैंने गाड़ी पीछे 703 के पीछे एक गेट है, उस वहाँ खड़ी कर दी। और तो मैंने गुरुजी को जाके बोलना गया कमरे में गुरुजी के कि गुरुजी खाना रख दिया है, चले। तो मैंने देखा गुरुजी ध्यान मुद्रा में बैठे हैं, और लेकिन आंखें बंद हैं उनकी। तो मैंने डिस्टर्ब नहीं किया। 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए, फिर दोबारा गया तो गुरुजी वैसे ही बैठे हैं। तो इतने में गुरुजी की आवाज आई, मेरे को बिटिया करके बुलाते थे। बोले, बिटिया। मैं कहा अंदर गया। बोले, कहते चल। मैक्सिमम गुरुजी गाड़ी में आगे बैठते हैं, लेकिन उस दिन वो पिछली सीट पे बैठ गए। तो पीछे बैठ गए तो मैंने गाड़ी स्टार्ट कर दी। गाड़ी स्टार्ट करके सेक्टर 4-7 का जो सर्कल है, वहां पर एक बुजुर्ग कपल जा रहा था। तो गुरुजी ने कहा, गाड़ी रोक के बोले, इनसे पूछ कहाँ जाना है। मैं हैरान था। मैं कहा, आज तक गुरुजी ने कभी ऐसा राह चलते आदमी कभी किसी को बोला नहीं कि पूछो, लेकिन गुरु का आदेश था, मैंने पूछ लिया। मैंने कहा, बाबा जी आपने कहाँ जाना है? वो बुजुर्ग थे। मैंने उनसे पूछा, मैं कहा, बाबा जी कहाँ जाना है आपने? वो मेरी तरफ बड़ी हैरानी से देखने लगे और बड़ी सोच में पड़ गए। फिर बोले, हमने बस स्टैंड जाना है। गुरुजी ने मुझे अंदर से ही बोला, इनको कहा चलो हम छोड़ देते हैं।
अब दिस इज अ सेकंड शॉक। मैंने गुरुजी की बात को उनको बोल दिया, मैं कहा चलो बाबा हम आपको छोड़ देते। पहले तो वो हिचकिचाए, फिर कोई बात नहीं आप बैठो, गर्मी का मौसम है, इस मई का महीना था। तो वो दोनों हिचकिचाते हुए गुरुजी के साथ सीट के ऊपर बैठ गए। बैठ के हम थोड़ी सी आगे चले तो मुझे बोले गुरुजी कि चल इनको बस स्टैंड छोड़ देते हैं। अब मैं गुरुजी ने उनसे पूछा कि कहाँ आए थे, तो उन्होंने बोला हम गुरुजी के यहाँ आए थे। गुरुजी को ही बोल रहे हैं कि हम गुरुजी के यहाँ आए थे। तो गुरुजी ने पूछा गुरुजी मिले नहीं? बोले नहीं गुरुजी तो नहीं मिले, उनका कोई एक शिष्य बैठा था गद्दी के ऊपर और उसने हमें गुरुजी से मिलने नहीं दिया। वो आपस में, मैं चुपचाप सुन रहा हूँ गुरुजी की और उनकी आपस में कन्वर्सेशन, उन्होंने गुरुजी को नहीं पहचाना। तो अब जब हो गई, गुरुजी का नहीं आपने कभी गुरुजी से मिले हो, कभी ऐसी बातें होती रही। अब मेरे से नहीं रहा, मैंने बाबा को बोला, मैं कहा बाबा पता तुम किसके साथ बैठे हो, देखो तो सही। उन्होंने गुरुजी की तरफ ध्यान से देखा तो वो दोनों मियाँ बीबी सीट से उतरकर फर्श पे बैठ के और गुरुजी के चरण पकड़ लिए और रोने लग गए। उन्होंने गुरुजी ने उनको बोला, बस इतना ही बोला कि बेटा तुम्हारा काम हो गया, और मुझे बोले कि इनको बस में, दिल्ली की बस में चढ़ा दे। गुरुजी ने उनकी क्या फाइनेंशियल हेल्प की मुझे नहीं मालूम। उसके बाद जब उनको बस में बिठाने के बाद हम लोग वापस आ रहे थे तो मैंने गुरुजी से पूछा कि ये गुरुजी कौन थे, क्या हुआ। पहले तो गुरुजी ने नहीं बताया, फिर बाद में अपने आप ही बोलने लगे कि बेटा ये बस स्टैंड नहीं जा रहे थे, ये रेलवे स्टेशन जाते, इनके बच्चों ने इनको घर से निकाल दिया था और ये आज रेलवे स्टेशन जा रहे थे और ये सुसाइड कर लेते। ये स्थान पर मेरे को मिलना चाहते थे लेकिन किसी ने नहीं मिलने दिया, तो ये स्थान पर अरदास कर रहे थे, रो रहे थे। तो इनकी वजह से मैं, इनकी बातें मेरे तक पहुंच रही थी, इसकी वजह से मैं आधा घंटा इनकी वेट करता रहा कि ये स्थान से निकले और बाहर आए तो मैं इनको मिलूं। इट्स मीन कि गुरुजी, कोई भी सच्चे दिल से गुरुजी को अरदास करता है तो गुरुजी तक वो पहुंचती है और आज भी पहुंचती है। Giri Lalwani ji is also going to share with us his perspective on the Guru's super constant awareness. He had to learn this in a very hard way, though his story is definitely very amusing, and I'm sure you'll probably laugh as much as I did when I heard it for the first time. एक्चुअली क्या हुआ, मैं फैक्ट्री डेली जाता हूँ, तो फैक्ट्री जाके वहाँ पर कोई वर्कर ने मिस्टेक करी और मैंने उसको थप्पड़ मार दी। तो मैं उसके बाद जैसे रात को घर पे आया तो दरवाजे पे मेरी सिस्टर थी, कहती है गुरुजी का फोन है। तो मैंने फोन बात करी, गुरुजी से प्रणाम किया। उन्होंने बोला हाँ पुत्रा अभी तो हम बहुत बड़े वड्डे हो गए। ऐसे गुरुजी समझ नहीं आई वड्डे का मतलब कि बेटा हम बहुत अमीर हो गए, हम गरीबों को मार सकते हैं, छोटे छोटे आदमी वर्कर है उनको मार सकते हैं। चल बेटा कोई बात नहीं पुत्रा, कोई बात नहीं, मैं तेरी ये बाँह को फ्रैक्चर कर दूंगा। ऐसे गुरुजी अभी गलती हो गई, कहते पुत्र निकल गया मुंह से। तो ठीक है अभी गॉड, और कोई तो चारा है नहीं। एनीवे आई हंग अप द फोन। तो 3 दिन मैं फैक्ट्री गया ही नहीं, इसके डर की वजह से कि मेरी बाँह टूटने वाली है, मेरा फ्रैक्चर होने वाला ही है। बट चौथे दिन फिर डैडी के कहने से मैं चला गया फैक्ट्री पे, और दोनों डैडी और अंकल के, फादर और अंकल के बीच में सीट में बैठ गया ताकि मेरी बाँह फ्रैक्चर नहीं होनी चाहिए। तो फैक्ट्री चले गए। फिर फैक्ट्री से डैड और अंकल निकल गए ऑफिस के लिए, कालबा देवी के लिए, और मुझे वहीं छोड़ के गए। तो मुझे मेरे लिए मैसेज छोड़ के गए, तू अपने कजिन के साथ आ जाना घर पे वापस खार में। ऐसे ठीक है। फिर मैं कजिन को कॉल किया, कजिन बोलता है तू यहाँ पर आ जा और यहाँ से पिकअप करके हम तेरे को लेके चलेंगे। तो मैंने कहा ठीक है, पर वो यार तू इधर आ जाओ और कुछ मेरे साथ। गुरुजी ने बोला है वहाँ तोड़ दूंगा। कहते नहीं यार ऐसा कुछ नहीं होता है, तू आ जा स्कूटर पे। मैंने बड़ा आराम से 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मैं स्कूटर लेके जा रहा था कजिन के पास। सडनली ना एकदम कोई आई डोंट नो समथिंग हैपेंड मैन, यू नो, मैं वहां से स्कूटर से गिरा और मेरी बाँह टूट गई। तो एक्चुअली मैं समझ गया कि ये तो कारनामा गुरुदेव जी का ही कराया हुआ है और कुछ तो हो ही नहीं सकता है। तो आई फ्रैक्चर्ड माय शोल्डर, लेफ्ट आर्म इन साइड। तो माय कजिन को फोन किया, वो आए, मुझे उन्होंने पिकअप किया। फिर आई केम होम
और घर पे जैसे मैंने बेल बजाई तो मेरी सिस्टर ने दरवाजा खोला, बोलती है गुरुजी का फोन है। तो मैंने गुरुजी का फोन मैंने उठाया कि हेलो गुरुजी प्रणाम। तो गुरुजी से कहते हैं आप पुत्रा क्या हुआ? मैं क्या गुरुजी आपने जो करना था कर ही दिया, तेरी माँ तोड़ ही दी थी। कहते मैं सोच रहा था कितने दिन में बकरे की माँ खैर मनाएगी 3 दिन तक तूने क्या समझा कि ऐसे ही होता है क्या? तो पुत्रा गुरु बनाना कोई आसान काम थोड़ी है। तो ये बातें ये इंसिडेंट मेरे साथ हो चुका है। Gurudev also had the uncanny ability to read thoughts. I guess it probably went hand in hand with constant awareness. But more of these stories in the soon to come video biography. Gurudev had great mastery over the human form. On one Mahashivratri, a German photographer decided to photograph Gurudev. The Mahaguru actually told him, I'm not present here today, so photograph me tomorrow. But the German, being fully confident of his skills, told the Mahaguru, I'm one of the best photographers in Germany. I think I can manage it. He actually clicked the photographs, but to his dismay, when he developed the reels, the film was absolutely blank. So the next day, he went and sought permission again from Gurudev, and this time Gurudev gave him the permission. And the German clicked the photographs, and the reel was developed, and the film was not blank. Binduji, who grew up watching the Mahaguru's many miracles, adds to this mystery by recounting twin tales of Gurudev's unrecognizability. Her stories are gleaned from her dad, Rajpalji, a beloved and accomplished disciple of Gurudev. I remember these two very distinctive experiences Papaji shared with us. He would go out, he'd go to Gurgaon or go out for tours with Guruji and come back and narrate his experiences after dinner when me and my sisters and my mom would be sitting. So I remember one of his experiences when he had gone to Srinagar and their car broke down and they needed some auto parts. So they went to a store. So when they went to the store, there was a huge roop of Guruji on the wall, and the owner was lighting dhoop in front of it. So Guruji, knowing that Guruji always wanted to pay for his purchases, Dad whispered to him, Guruji, ऐसे तो थोड़ा रूप लगे हुआ है. He's not going to take any money from you. So Guruji said, of course he is. You won't even know I'm here. Would you believe the man turned around after his puja, sat in his chair, started his day, made a sale to Guruji, did not recognize him at all, took the money and Guruji and Papaji left. Papa कहते हैं उसने पहचाना ही नहीं मैं कौन हूँ, गुरुजी कौन है. उससे 3 सेकंड पहले उसने अपनी धूप जलाई थी गुरुजी के आगे. It was a pretty big roop. It wasn't like a tiny little roop. But tiny हो या बड़ा हो, गुरुजी को थोड़ी कोई गलती लगा सकता है कि ये गुरुजी है ही नहीं. इतनी बड़ी गलती थोड़ी लगती है. And there was one more time when Papaji and Guruji went to Gurgaon, and when they pulled in the car, they saw a huge crowd, which was a very normal thing back in the day. 100-200 आदमी रोज वहाँ खड़े ही रहते थे. So पापा से गुरुजी यहाँ तो बड़े सारे, यहाँ तो इतनी पब्लिक है, अंदर कैसे जाएंगे? अंदर जाते जाते 1.5 घंटा लग जाएगा. So गुरुजी से पहचानेंगे तो 1.5 घंटा लगेगा. So my dad was like, whatever that means. Guruji की बातें समझ थोड़ी आती थी. And he used to say it very casually. Oh, वो तो नहीं पहचानेंगे. And they just walked through the entire crowd. So they pulled their car, got out of the car, walked through the crowd. Nobody recognized both of them. And they went to Guruji's room. After a tale of 2 mysteries, let's hear the tale of 2 cities, London and Gurgaon. हमारे विंग कमांडर थे, नाम है भूल गए, गुड़गांव में, वर्मा.
हाँ वर्मा, भीम कुमार वर्मा, उनके जो दामाद थे लंदन में, सुनील, मेरे पास हैं सुनील भाई, सुनील भाई, उसका फोन आया मेरे पास, बख्शी जी, गुरु जी अभी मेरी दुकान पर आए हैं, तो किसके पास ठहरे हुए हैं? मैं क्या बोल रहा है यार, क्या बोल रहा है गुरु जी, मेरे पास बैठे हुए हैं। तू कहता है लंदन में हैं वो? कहते नहीं, वो आए हैं, गुस्से में थे और चले गए। The conversation that was alluded to in this audio clip actually took place between Sunil ji, who lives in London, and Bakshi ji, who was seated with Gurudev at the Sthan in Gurgaon. The air travel time between London and Gurgaon, just the air travel time, is roughly about 9 hours. But Gurudev was in London and Gurgaon at exactly the same time. Ravi Trehanji now chimes in with a few more remarkable examples of Gurudev's bilocation abilities. And don't miss out Gurudev's ability to actually walk through walls. गुरुजी पूसा के ऑफिस से ट्रांसफ़र हो गए, कस्तूरबा गांधी मार्ग में उनका ऑफिस था, और हम लोग अक्सर गुरुजी को के दर्शन करने के लिए वहाँ चले जाया करते थे। उस ऑफिस के ठीक नीचे एक गुप्ता जी की दुकान थी, जहाँ चाय, कॉफ़ी, जूस वगैरह मिलता था, और हम अक्सर उनसे पूछ लेते कि गुरुजी ऊपर हैं या उनका क्या प्रोग्राम है, कुछ उनको खबर रहती थी। मैं गया, उनसे पूछा कि गुरुजी ऊपर हैं? बोले नहीं, वो तो 15 मिनट हो गए चले गए। बोले कहाँ चले गए? बोले तो गुड़गांव गए हैं। मैंने गुड़गांव फ़ोन किया पता करने के लिए कि गुरुजी वहाँ अभी पहुँचे कि नहीं पहुँचे। खबर मिली कि गुरुजी तो फार्म हाउस पे पिछले 2 घंटे से बैठे हैं। मतलब वो दफ्तर में भी अवेलेबल थे, मेरे वहाँ पहुँचने के 15 मिनट पहले ही निकले थे। ऑफिस से गुड़गांव जाने के लिए उनको कम से कम 1 घंटे का टाइम चाहिए था, लेकिन जब मैंने बात की तो मुझे पता लगा कि वहाँ 2 घंटे से बैठे हैं। सो वो एक ही टाइम पर 2 जगह पर विराजमान थे। एक इंसिडेंट और मुझे याद आता है, नागपुर में उनका कैंप लगा था और स्टाफ के लोग बाहर बैठे हुए थे पार्क के अंदर। एक मेन बिल्डिंग थी उनकी जहाँ वो रह रहे थे। उनमें से एक शख्स, उनका जो कोलीग था, उठ के अपने फर्स्ट फ्लोर पे किसी काम से गया होगा, तो जैसे ही वो सीढ़ियाँ चढ़ने लगा, उसने खिड़की से देखा कि गुरुजी कुर्सी पर बैठे फ़ोन से बात कर रहे हैं। उसने और नज़र बाहर को दौड़ाई, देखा कि वो दरवाजे को ताला लगा हुआ था, सिर्फ खिड़की खुली थी, और अभी 1-2 मिनट पहले मैं गुरुजी को बाहर छोड़ के आया हूँ। ये कैसे मुमकिन है कि गुरुजी बाहर भी थे और अंदर भी हैं? तो गुरुजी ने देख लिया उसको और इशारा किया, किसी से बोलना मत। तो 2 जगहों पर एक ही टाइम पर वो विराजमान एक चश्मदीद गवाह ने भी देखा। So besides walking through walls, as we heard in Ravi Ji's clip, Gurudev could also astral travel. Let's get Mata Ji to reveal the inside picture. ये ऑफिस में बताते थे कि ऑफिस में दोपहर के टाइम में मेरे मुंह से कुछ ऐसी बातें निकलने लगी जो कि इनकी बातें पूरी होने लगी। फिर ये लोग मेरे आसपास घूमने लगे, ऑफिस वाले जो कलीग होते थे, कि ये इस टाइम में ये बात बोलते हैं तो वो पूरी हो जाती है, उस टाइम में हम भी कहेंगे। फिर जो अपने आप को छुपाते रहे कि अभी मैं बाहर शो नहीं करना चाहता कुछ भी। इनको अपने स्पिरिचुअल लाइन की मूवमेंट को फैलाने में मेहनत तो काफी लगी होगी। किस किस्म की मेहनत लगी है, या इनकी इन्वेस्टमेंट क्या होती थी? टाइम की, या लोगों के साथ वक्त रह के शिक्षा देने की, या किस तरीके से इनकी स्पिरिचुअल मूवमेंट का फैलाव शुरू हुआ? इनका जब पाठ का होता था, मैंने कभी इनका इतना टाइम नहीं देखा था कि इनका टाइम जो फिक्स है कि हर के पाठ पे हो, ये मैंने कभी नहीं देखा था। वो तो कहते थे दुनिया रात को सोती है, हम जागते हैं। हम जब सोते हैं
तो लोग कहते सोते हैं, हम सोते नहीं, दुनिया को क्या पता हम क्या करते हैं। इसका क्या मतलब था? वो कहते थे मैं ही सब कुछ हूँ, मैं भ्रमण करता हूँ पब्लिक में, मेरे शिष्य क्या करते हैं, पब्लिक क्या कहते, पता नहीं मैं कहाँ कहाँ जाता हूँ, कौन जान सकता है, कोई भी नहीं जान सकता। आप क्या जो कह रही हैं, शायद इसका आपका मतलब है कि ये स्पिरिचुअली आउट ऑफ द बॉडी ट्रेवल करते थे? हाँ करते थे। जैसे नॉर्मली सो रहे वैसे ही लगता था कि कोई अंतर होता था? नहीं, नॉर्मली सो रहे अच्छी लगते थे, कोई अंतर नहीं होता था। कभी कभी बीच में कभी इनके फ्रेंड्स आ जाते, तो उस टाइम तो फ्रेंड ही थे ना, आते थे तो ये जब शिष्य नए नए बने तो ये कहने लगे, कहते थे एक दो बार किसी ने जगाया तो ये उनको नाराज हुए, कहते तूने क्यों जगाया। फिर उन लोगों को इन्होंने कहा कि आप मत जगाया कर, अपनी माँ को बोलो मुझे। जब मैं जगाती थी तो कई बार मैं पाँव को झटका देती थी कि नहीं उठते थे, फिर मैं कहती थी नहीं उठता, और मैं जगाती ये पैर को भी झटका देती थी। कभी ये ज्यादा लोग कहे ना, पैर को भी झटका देती थी, पहले अंगूठे पकड़ती थी दोनों, फिर पाँव का भी झटका देती थी। हो सकता है कहीं जब बाहर दूर गए हुए हुए ना पहुंच पाए, ये कहते तो थे ना, और कभी कहीं जाता हूँ मिनट 2 मिनट 3 मिनट लगते हैं टाइम आने में, तो वो ना टाइम मिला तो फिर मैं छोड़ देती थी। Often, Gurudev took his disciples with him on these astral journeys. The purpose was either to train them or to steer them in the intended direction. And one disciple recalls Gurudev taking him to the Dhruv Tara or the North Star and telling him, जिस जगह हम रहते हैं उसका रास्ता यहाँ से होकर गुजरता है। And the late Santalji, who ran a stan in Sonipat, shares an example of astral induction. आपके जब वो पार्क पे जाते थे और एस्ट्रल ट्रैवल पे जाते थे, जब अपने एस्ट्रल ट्रैवल पे जाते थे आउटर बॉडी, तब उन एक्सपीरियंसेस में आप भी गए उनके साथ, है ना? तो वो आप शेयर करना चाहेंगे? बात ये है, हमें कुछ नहीं पता, सच्चाई है। हाँ जी। मैं, बख्शी जी और एक और हमारा गुरु भाई गए थे हिमाचल में जी, जब टूर पर थे गुरु जी। तो हमें तो उन्होंने ये कहा था कि सिराने पानी रख लो और दूध और लेट। ठीक है। वो अपने आप हमारी सोल से निकाल कर हमारे, तो ये जरूर समझाया था उन्होंने कि इस टाइप की कोई लाइट रास्ते में देखो तो वहां जरूर देखो। कौन सी टाइप की? ये जो लाइट है ना, हाँ जी, ये थोड़ी सी येलोश होती है ना। जी जी। येलोश नहीं, व्हाइट कलर की बताते थे। तो उन्होंने कहा था कि व्हाइट लाइट देखें तो रुक जाना जब आप आउटर बॉडी में है। तो आपके जो एक्चुअली ये होता गुरु का है। हाँ जी। चलो हमें तो एक उद्देश्य दे दिया उन्होंने, वो तो आपको एक्सपीरियंसेस दे रहे थे। वो उद्देश्य दे रहे, तो हम वहाँ 3 जने गए थे। अमीर चंद, तीसरा का नाम अमीर चंद जी। बख्शी जी थे जो शिमला में बैठ कर सेवा करते हैं जी। अमीर चंद गांव में, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट, और मैं था। हम तीनों थे, तीनों को उन्होंने हमारी बॉडी से निकाला था, ले गए। तब ये दरवाजा अंदर से हम बंद करके सोते हैं, तो हमें आकर अपने अपने स्थान पर पूजा करनी थी। आप देख लो हम कैसे अंदर भी आ गए, जाली के थ्रू पूजा की। उन्होंने ये बोला था कि आपने बच्चों को नहीं मिलना, मतलब मिसेस से नहीं मिलना, और कोई पानी पूनी नहीं पीना। पानी ये कुछ किधर किधर नहीं पीना पानी? घर में। अच्छा, अपने घर में अपने स्पिरिचुअल फॉर्म में आके आपने पानी नहीं पीना और वाइफ से मिलना नहीं। वाह। तो बल्कि बच्चे थे मेरे छोटे छोटे, तो मैंने बुलाया, मैडम करके बोलते मिले तो उनके को। हाँ जी हाँ जी, ठीक सही। तो मैंने कहा हाँ जी बोलो। फिर मुझे उन्होंने कहा था बोलना भी नहीं है, और मैं गलती से बोल भी गया। तो पूछना तो बच्चों के, क्योंकि मैं वहां रहता था, मैं आया हूँ तो बच्चों का तो पूछूं। बाद में मुझे याद आया कि गुरु जी ने मना किया था कि मुझसे मिलना भी नहीं, तो इसलिए मैं
बुला बैठा हूं तो वो आएगी उठ के, मैं फिर चुप कर गया। तो ये भी अपना सो गए। तो जब मैं सवेरे ये उठे तो दरवाजा खुला था, मतलब ये खुलती थी ना, ये खुली थी। हाँ जी। तो हम और अमीर चंद जो था वो भूल गया था, मतलब इसमें तो मैं और उधर से बख्शी दी हम पहुंच गए थे। तो थी तो उनकी कृपा कि कैसे आएंगे कैसे जाएंगे, नहीं तो हमें क्या पता जाली में से कैसे क्रॉस होता है। तो हमारे तो चारों तरफ जाली लगी हुई जी जी। ताकि मॉस्किटो से बचा जाए। तो ये काम। तो जी वीरचंद जी जब भूल गए तो फिर वो वापस कैसे आए? फिर हम पहुंचे जब तो बॉडी उठ गई हाँ हमारी। जी। तो गुरु जी ने कहा भाई रुको भैया, वीरचंद जी है। तो वो लेटे और वो लेके आए। उसको ढूंढ कर गए। Buddan ji, who runs a stan in Kanpur, could manage to meet her mother before her mother's demise only due to an astral flight. How was that possible? अब ये ऐसी बात है कि अब हम नहीं जानते कि ये सही है या गलत है, लेकिन हमारी मदर डेथ बेड पे थी। गुरुजी ने हमको अपने पास ही रख रखा था 5 महीने तक। वो कानपुर में थी, हमसे उनको मतलब उनको हमसे अलग कर रखा था, एक तरीके से कहना चाहिए। अब वो किस लिए किया था, ये उनका क्या मकसद था, ये तो वही जानते हैं। अब चूँकि गुरुजी ने हमको अपने पास रोका था तो हमारी इतनी हिम्मत नहीं थी कि हम कहते नहीं हमारी मदर की हालत हम वहाँ जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक भी उन्होंने करा हुआ था कि उनका हाल भी हमको नहीं बताते थे, और सबसे मना कर रखा था कि गुड्डन को उसकी माँ का हाल नहीं बताना है। तो एक दिन जिस दिन मतलब उनकी डेथ हुई है उससे 2-3 दिन पहले की बात है। अब उसको आप कुछ भी रूप दे सकती हैं। तो हम लेटे हुए थे, हमको ऐसा लगा कि हम उड़ते हुए अपनी माँ के पास पहुँचे, और वहाँ पे हम टच नहीं कर रहे हैं उनको, और वो हमको ये एहसास है कि हमको भी वापस जाना है, वहाँ गुड़गांव पहुँचना है। तो हम उनसे मिलते हैं वहाँ पर, और मिल करके फिर हम वापस वहाँ उठते हैं और पहुँच जाते हैं। और ये भी डर लग रहा है कि भाई गुरुजी वहाँ हैं, गुरुजी के ने जितना कहा है उतने टाइम हमें वहाँ पहुँच जाना है। तो हम जल्दी से वहाँ पहुँच जाते हैं। तो ये चीज़ हमको लगा भाई जैसे मैंने सपना देखा होगा, लेकिन फिर जब उनकी डेथ हो गई फिर हम गुरुजी के पास में आए। उस समय गुरुजी यहाँ राजपाल जी के यहाँ रुके हुए थे। तो उन्होंने बोला कि हमने कहा गुरुजी अम्मा चली गई, हम उनसे मिले भी नहीं। कहना कौन कहता कि नहीं मिली, तू गई तो थी, मैंने तुझे बिले भेजा था। तो हमने कहा कहाँ, तो उन्होंने वो घटना याद दिलाई मुझको, तो याद आया। और ये बात ये लोग बताते हैं हमारे भाई ने और इन्होंने बताया कि उन्होंने मदर ने वहाँ बोली थी कि गुड्डन आई है, मतलब उस हालत में उनको लगा था कि हम वहाँ पहुँचे हैं। तो ये गुरुजी की जो भी इसमें लीला हो, तो ये मेरा है, इसको हम कह सकते हैं। ऐसा कई बार ऐसा भी होता है जैसे हम लोग सपना देखते हैं, तो हम लोग को जो भी गुरुजी कराते हों, अब ये हम नहीं जानते हैं, लेकिन उसमें ऐसा महसूस होता है कि अरे हम ऐसे मिले जा कर के। तो अब वो हमको तो सपना लगता है, अब वो गुरुजी उस रूप को कराते हैं, कैसे कराते हैं ये गुरुजी जाने। So besides Gurudev's biography, whether it's the web biography or the audio and the video, you can read more about Gurudev's outer body travels in the book Dream Sutra, Perceiving Hidden Realms. In passing, I must also let you know or share with you that Gurudev had figured out a way of ensuring that one part of his body slept at any time and the other part was awake. This was probably one of the reasons for his heightened spiritual efficiencies.
Calling Gurudev the Rainmaker is a simpler way of sharing his exemplary control on nature's elements. I won't go into too many experiences. Of course, like my regular pitch, I'm going to say that here as well. You can hear more about this in the web biography, the audio biography, and the video biography, which I'm sorry, I'm distracting for a moment, which incidentally do not necessarily have all similar examples. So taken together, you can hear a lot of those examples in the biography. It actually rained on the day Gurudev was born. And he had a strange connection with rain. He could command it to pour when he wanted, or he could will it to stop when he chose. On one Guru Purnima day, a disciple informed him that the people waiting in long queues were very tired, not only because of standing for long hours, but because of the scorching heat of the July sun. So Gurudev willed it to rain. And it so happened that it started raining almost immediately. But it rained only till where the queues extended. Let's talk of Gurudev's multiple forms. Sitting across Gurudev at Shivpuri in Gurgaon, his disciple Shambhuji demanded to know if it was possible for any human being to have 5 heads. Gurudev answered the question, and how? तो राज जी आप बताएंगे कि आपके साथ ये जो सिलसिला हुआ था जब शंभू जी जिनके साथ आप थे उन्होंने गुरुदेव का 5 हेडेड फॉर्म देखा था, आप थे वहां पे राइट उनके साथ, ये किस तरह से हुआ आप एक्सप्लेन करेंगे? हाँ, ये शिवपुरी की बात है। सेक्टर 7 में गुरु जी का रेजिडेंस है, वो शिवपुरी में रहते थे। तो वी फाउंड ये शंभू जी उनके साथ एक थे कुलीग रामनाथ और एक आधा और था, छोटा सा कमरा था जहाँ स्थान बना हुआ था। तो शंभू जी ने पूछा, गुरु जी ये 5 मुख जो है शिव जी के, ये पॉसिबल है? गुरु जी कहते हैं हाँ बेटा पॉसिबल है, और तुम्हें दिखने का? गुरु जी देखने, बट ये देखने मैंने तुझे 5 साल की एक्सटेंशन दे रखी है। 75 में वो हिमाचल में गए थे गुरु जी और शंभू जी को 5 साल की एज दी थी। देख ले बेटा, तू जिंदगी चाहता है 5 साल या दर्शन करना चाहता है? तो शंभू जी ने कहा मुझे दर्शन करा दो, मुझे जिंदगी नहीं चाहिए। तो गुरु जी ने उस वक्त अपना रूप दिखाया, शंभू जी फेंटेड, वहां गिर गए। उसके बाद गुरु जी ने जब थोड़ा सा लिया छिड़का और थोड़ा बाहर चले गए। उसके बाद शंभू जी उठे, ही वाज मेस्मराइज कि ये चीज हो कैसे की। तो उन्होंने हम 3-4 लोगों को बताया, तो उन्होंने कहा कि गुरु जी ने 5 मुख का मुझे अपने दर्शन कराए हैं। और उसके बाद जो मैं टॉलरेट नहीं कर सका क्योंकि उसमें इतनी जबरदस्त लाइट वगैरह थी, आई कुडंट टॉलरेट, और मैंने दर्शन कर लिए। 5 years extension age he got from the Guru and he died in 1980. आप भी थे वहाँ पर, आपको हुए? मैं था, रामनाथ था, एक आधा और था, मुझे आई डोंट रिमेम्बर नाउ, बट किसी और को दर्शन नहीं हुए, सिर्फ उनको। There are several instances of Gurudev changing form, and some of his disciples have actually caught those glimpses. One disciple in Delhi saw him with his head double in size, while Gupta ji of Parvanu saw a dwarfed or a midget form of the Mahaguru. Shambhuji, whom we just spoke of earlier, Shambhuji's son Papuji shares his own version of Gurudev's mind-bending, or should I say form-bending story with us. Let's hear Papuji. मैं चंडीगढ़ में पढ़ता था जी, तो छुट्टियां होती थी तो मैं गुड़गांव आ जाता था। तो रात को जैसे मैं वहां पहुंचा, ये गुरुजी थे, नौकर होता था अरुण। हम दोनों ने खाना खाया, उसने खाना वाना खिलाया, वो कहते बप्पे अब तू जा आराम कर, और मैं भी जरा मैं
मैं भी आराम करता हूँ। मैं ठीक है जी। तो गुरु जी वहां बैठे हुए अंदर कमरे में। तो पता नहीं क्या हुआ, कुछ उन्होंने आवाज दी है, क्या हुआ, मैं उठ के वहां से आया। तो जैसे देखा तो वो अंदर बैठे हुए हैं और उनके ना मुंह पे दाढ़ी बड़ी हुई है, जैसे ये हमारे शंकर रूप है ना दाढ़ी, उनकी दाढ़ी बड़ी हुई है। तो मैं थोड़ा परेशान हो गया। मैंने कहा यार ये क्या हुआ, अभी सब नॉर्मल था और यार ये दाढ़ी है, ये क्या है। तो गुरु जी कहते ऐसे करो, कपड़े में सो जा जाके, सुबह जल्दी उठना, लोग भी आ जाएंगे। मैं अच्छा जी। तो मैं सो गया। अच्छा, मुझे वो सारी रात वही मेरे दिमाग में घूमी जाए बात, दाढ़ी वाली। क्या अच्छा, सुबह जब मैं वो मेरे दिमाग में तो वो रात की हलचल थी जी। मतलब गृहस्थी तो थी, वो मैं परेशान था। तो उनके जैसे मैं अंदर गया, मत्था टेका और सीधा मतलब उनके मत्था तो मैंने टेका, ध्यान तो मेरा उनके मुख पे था। तो देखा तो बिल्कुल नॉर्मल। तो क्या है मैं बोली, तो मुझे समझ नहीं आ रहा, आपको आपकी इतनी लंबी दाढ़ी थी, आपने ये कैसे सुबह सुबह सेव शुरू कर ली। क्या बात करता है, दाढ़ी दूढ़ी कहाँ थी, क्या तेरा दिमाग खराब हो गया है। फिर वो मुस्कुराए, कहते कोई तुझे पता लग जाएगा यार। अच्छा, तुझे पता लग जाएगा। हाँ, तुझे पता लग जाएगा। चल, कुछ नहीं था ऐसा, कोई दाढ़ी दूढ़ी नहीं। तो ये चीज, ये तो मैंने प्रत्यक्ष देखी हुई है जी। पर जब दाढ़ी आपने देखी तो उनका चेहरा जो अभी नॉर्मल चेहरा था वो था विद दाढ़ी या कोई शिव रूप का चेहरा था? नहीं, चेहरा वही उनका, वही चेहरा और दाढ़ी बड़ी, दाढ़ी बड़ी हुई है। और ये नहीं कोई छोटी नहीं थी, ठीक मतलब कम से कम 5 इंच 4-5 इंच की दाढ़ी थी जी जी जी। हाँ, फिर वो तो अंडरस्टूड ही थी चीज की, ये साथ साथ पता नहीं किस रूप में इन्होंने क्या मुझे दिखाना था, क्या दर्शन देने तो वो दिए जी। बस ये हुआ था। When the New Zealand-based Uddhavji tried to use his nunchaku on the 2 black triangles with the yellow eyes that came gliding into his room via the window, his hand froze and he fell unconscious. When he awoke the next morning, he decided to definitely share the story with the Mahaguru. So when he told Gurudev smiled. He said, first you invite me, and then when I do visit you, you try to attack me. The Mahaguru also went to tell Uddhavji that he actually had to negotiate with the accompanying triangular form to spare Uddhavji's life, because the nunchaku aggression had certainly not been very well received by the triangular form. But indeed, it's really very difficult to give a singular identity to the multiple energies the Mahaguru manifested. And at different times, the Mahaguru operated from different levels of consciousness. I don't remember it verbatim, but in the Bhrigu Samhita, the sage Bhrigu says something like this about Gurudev. He qualifies the Mahaguru as a Divya Atma and Shiv Swarup. And he said he was more like Shiv while in meditation, like Vishnu in speech. In seva and protection, he was like Brahma. And in relieving pain, he was like Jagdamba. He also went on to say that Gurudev had an aura like the sun, which was warm on the outside but very soft on the inside. And it had lots and lots of hidden knowledge. His words were, it was filled with hidden knowledge. But he also added one statement. And hear this. He said, people will not be able to know the real entity behind this human form. Gurudev did indeed have an association with many powerful deities. The list is long, but let me name a few. Guru Nanak Dev Ji, Sai Baba Ji, Guru Gobind Ji, Parshuram Ji, several manifestations of Shiv, several Muslim saints, Lord Krishna, Guru Vashisht, Dattatreya Ji, Bude Baba, super energies like Mahakali, Renuka Ji, Saraswati Ji, Lakshmi Ji,
the divine physicians or the Ashwin Kumars, Hanumanji, and of course, Ganpati ji. Wherever Gurudev decided to open stans, he chose to forge an alliance with the presiding deity of that area. Being a spiritual heavyweight in this incarnation, it was perhaps easier for him to tap into his associations, since in his previous lifetimes, he had already made those alliances. In a sense, a gazillion stories, some in the biography, will certainly vouch for the Mahaguru's supernature. Yet, we can only capture glimpses of his enormity. One of Gurudev's disciples explains why this possibly was the case. Let's hear him. Hamsa, the thing is, we are all bewildered, and we have been all bewildered and amazed by his capabilities, his potency, his competence to showcase spiritual feats that for most human beings are nothing short of miracles and super miracles. But it took me years to understand the how and why of it. I think the stories of Superman helped. You see, the thing is, Superman mythologically came from a planet where everybody had these superpowers, or at least I think so from my memory of Superman. But the same way, when he came to Earth, he could have X-ray vision, he could fly, he could do this and he could do that. Gurudev also, in a much more serious note, came from one of the highest loks. So when you come from one of the highest loks to a much lower lok, you come with competencies and potencies that are not common to this lok. And therefore, all that he did and showcased was for him a very natural thing, a very common thing. But we are amazed because for us it is not common. And that is how I would understand and explain his supernature. Gurudev's limitlessness is still felt at his town in Gurgaon, other towns across the country, and his Samadhi in Najafgarh. The invisible man is still a very visible force. Let his stories inspire you to find your own supernature. That would be my earnest appeal to you. And thank you for the conversation. I'm going to play the Mahaguru's favorite poem. I hope you like it. कोई समझा नहीं ये महफिल दुनिया क्या है, कौन खेलता है, किसका खिलौना क्या है। बाद मरने के हुआ बोझ सभी को मालूम, बाद मरने के हुआ बोझ सभी को मालूम, जल्द ले जाओ इसे, इस ढेर में रखा क्या है। कोई समझा नहीं ये महफिल दुनिया क्या है। दो घड़ी रो लेंगे ऐ बाप तेरे घर वाले, दो घड़ी रो लेंगे ऐ बाप तेरे घर वाले, फिर भुला देंगे तुझे, तू समझा क्या है। कोई समझा नहीं ये महफिल दुनिया क्या है। शौक गिनने का है तो अपने अहमालों को गिन, शौक गिनने का है तो अपने अहमालों को गिन, तेरी गिनती नहीं दौलत को तू गिनता क्या है। कोई समझा नहीं ये महफिल दुनिया क्या है। मैं वो शय हूं जिसे छू लूं उसे सोना कर दूं, मैं वो शय हूं जिसे छू लूं उसे सोना कर दूं। मैं तो पारस हूं, पारस को तू परखता क्या है। कोई समझा नहीं ये महफिल दुनिया क्या है, कौन खेलता है, किसका खिलौना क्या है।